Hello everyone, welcome back again. I am Professor Salim Mullah from PG Mose College of Engineering, Wagholi, Pune. In the last video lecture, we were seen about the reasons for poor quality in construction. Today, we are going to learn about what are the 7 quality control tools which are generally used to maintain or to achieve the quality in any organization. Let us start with this. What is quality? What is 7 quality control tools? Now, these are the tools or techniques, which is a set of graphical techniques identified as being most helpful in troubleshooting issues related to quality. Now, 7 quality control tools किसे कहते हैं? एक पर्टिकुलर ग्राफिकल टेक्निक्स है जिसके अंदर ये आइडेंटिफाई किया जाता है कि कौन से ऐसे ट्रबल शूटिंग इश्यूज होते हैं जो क्वालिटी को हैम्पर करते हैं या क्वालिटी के रिलेटेड होते हैं. नाउ दीज टूल्स आर आल्सो फंडामेंटल इंस्ट्रूमेंट्स टू इम्प्रूव द प्रोसेस एंड प्रोडक्ट क्वालिटी. इन क्वालिटी 7 क्वालिटी कंट्रोल टूल्स का यूटिलाइज करके हम अपने प्रोसेस की या प्रोडक्ट की क्वालिटी इम्प्रूव कर सकते हैं. दिस इज एक्ट एज अ फंडामेंटल इंस्ट्रूमेंट्स. Now these 7 quality control tools are easy to understand and implement and does not need complex analytical or statistical competence. अब ये 7 quality control tools का यूज़ जो है वो यूज़ करके हम उसको easily understand हो सकता है या implement करने के लिए वहाँ पे कोई कॉम्प्लेक्स एनालिटिकल या स्टैटिस्टिकल कॉम्पिटेंस की ज़रूरत नहीं होती है. सो इट इज़ वेरी understandable for everyone. These are the tools which facilitate the organization to resolve the basic problems. जो भी बेसिक प्रॉब्लम्स होते हैं उन बेसिक प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करने का एक पर्टिकुलर टूल्स है ये 7 क्वालिटी कंट्रोल टूल्स. नाउ अगेन दे आर यूज्ड टू एग्जामिन द प्रोडक्शन प्रोसेस. ओके वहाँ पे क्या एग्जामिन कर सकते हैं जितने भी प्रोडक्शन की प्रोसेस है उसके अंदर. देन आइडेंटिफाई द की इश्यूज. जो भी की इश्यूज है उनको आइडेंटिफाई करना, प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करना, कंट्रोल फ्लक्चुएशंस ऑफ प्रोडक्ट क्वालिटी के फ्लक्चुएशंस को कंट्रोल करना एंड गिव द सॉल्यूशंस टू अवॉइड द फ्यूचर डिफेक्ट्स. और लास्ट में एक फ्यूचर डिफेक्ट्स ना हो तो उसके लिए सोल्यूशन फाइंड आउट करने का काम ये 7 क्वालिटी कंट्रोल टूल्स करते हैं. ओके नाउ नेक्स्ट. नाउ विच आर द 7 quality control tools? Now first one, fishbone. Fishbone diagram is also known as the cause and effect diagram. Okay, then Pareto chart, then stratification, checklist, scatter diagram, histogram and the control chart. Now these are the 7 basic quality control tools which are used to maintain the quality in any organization. Now let us see one by one what is the fishbone diagram. Now here you can see the structure of this diagram is looking like a fish. Okay, now why it is called as a fish? Because it is look like a fish. So it identifies the possible causes of any problem. This diagram is identifying the possible causes or possible problems. Okay, possible reasons of any problem. So it sorts the ideas, okay, into following categories and then brainstorming as well as why analysis helps in extracting possible causes. Now there are various particulars, that is the method, machinery, people, okay, which are then material, again then measurement and the environment. These are all the particulars which are used in working process. Now in their case what are the possible causes will happen during the work, okay, or during the process. मतलब इस पर्टिकुलर ये जो फंडामेंटल जितने भी पर्टिकुलर्स है जैसे कि मेथड है, मशीनरी है, पीपल में है या एनवायरनमेंट है या मेजरमेंट या मटेरियल में कौन कौन से पॉसिबल कॉजेस आ सकते हैं काम करते वक्त. ठीक है, तो पूरा का पूरा उसका जो कुछ भी यहाँ पे दिया है कि प्राइमरी कॉज क्या हो सकता है, सेकेंडरी कॉज क्या हो सकता है, ठीक है, और उसके बाद में उसका इफेक्ट क्या हो सकता है. ठीक है, तो ये प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने के लिए ये क्वालिटी कंट्रोल टूल्स बहुत ही हेल्पफुल है. ओके, विद द हेल्प ऑफ दिस इट हेल्प्स स्टिमुलेट थिंकिंग व्हेन डेवलपिंग द लिस्ट ऑफ पोटेंशियल सोर्सेस ऑफ अ प्रॉब्लम. कौन कौन से प्रॉब्लम्स होते हैं उनकी लिस्ट मिल जाएंगी.
इट गाइड्स कॉन्क्रीट एक्शन एंड ट्रैक्स द पोटेंशियल कॉजेस। इसकी वजह से क्या हो सकता है, हम पर्टिकुलर एक्शन किस तरह से दे सकते हैं या ट्रैक कर सकते हैं पोटेंशियल कॉजेस कितने भी है ड्यूरिंग एन इन्वेस्टिगेशन एफर्ट टू डिटरमाइन वेदर द आइटम सिग्निफिकेंटली कंट्रीब्यूट्स टू द प्रॉब्लम और नॉट, कि यहाँ पे जितने भी पोटेंशियल कॉजेस है उनको आइडेंटिफाई करने का यहाँ पे काम होता है, और जितने भी जो भी एफर्ट टू डिटरमाइन वेदर द आइटम सिग्निफिकेंटली कंट्रीब्यूट्स टू द प्रॉब्लम और नॉट, उनके जितने भी हमने वहाँ पे आइटम्स है वो सिग्निफिकेंटली कंट्रीब्यूट कर रहा है क्या, या प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है या नहीं क्रिएट कर रहा है, ये यहाँ पे हम फाइंड आउट कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट इज check sheet. This is the second tool of quality control. Now it is a structured form of collecting and analyzing the data. Now whatever the work doing on particular site, okay, down this is the form in which you can see the day wise defect types, product 1, product 2, product 3, product 10, okay, and then we can collect that particular data, analyzing that data which is used to collect the patterns or frequency of any event which is widely used for variety of purposes. ठीक है, तो चेक शीट में क्या होता है कि जितने भी डेज होते हैं वो डेज के अंदर आने वाले कौन कौन से प्रॉब्लम्स होते हैं, जैसे कि प्रोडक्शन 1 है, प्रोडक्शन 2 है, तो उसमें से कौन कौन से प्रॉब्लम्स वहाँ पे आ सकते हैं, तो उनका पूरा का पूरा यहाँ पे समरी होता है। ओके, एंड इट इज़ अ checklist which is used when users are interested in counting the number of occurrences of an event. चेकलिस्ट का मतलब क्या होता है कि कितने फ्रिक्वेंटली वही प्रॉब्लम आते जाते रहते हैं, डिफेक्ट्स कितने आते रहते हैं, या नॉन कन्फॉर्मेंसेस कितने होते हैं। ठीक है, पर्टिकुलर काम दिया है एक पर्टिकुलर पर्सन को, तो उससे वो काम आउटपुट आया है या नहीं आया है, तो यहाँ चेकलिस्ट में हम देख सकते हैं। इन मेनी इंस्टेंसेस अ चेकलिस्ट विल समराइज काउंटेबल डाटा रिलेटेड टू सर्टन टाइप्स ऑफ डिफेक्ट्स। ये चेकलिस्ट एक पर्टिकुलर समराइजेबल काउंटेबल डाटा का काम करती है जिसके अंदर सर्टन टाइप्स ऑफ डिफेक्ट्स होते हैं, एंड विच विल प्रोवाइड अ रफ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेयर, और ये पर्टिकुलर एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करता है कि जहाँ पे कहाँ पे वो एक्चुअली डिफेक्ट आता है, इन अ पार्ट और प्रोसेस, और डिफेक्ट्स ऑकर्ड कहाँ पे वो हो रहा है। नेक्स्ट इज third tool, that is control chart, which is a graphical representation of a process to analyze its behavior. control chart में यहाँ पे जितना भी डाटा आता है उसको एनालिसिस किया जाता है, डाटा की जगह प्रोसेस को एनालिसिस किया जाता है, एंड वहाँ पे इट्स बिहेवियर का भी चेक किया जाता है। बाय एनालाइजिंग प्रोसेस डाटा वन कैन डिटरमाइन वेदर प्रोसेस वेरिफिकेशन इज प्रेडिक्टेबल और अनप्रेडिक्टेबल। जो भी प्रोसेस चल रही है उस प्रोसेस को एनालाइजिंग करने के बाद ये डिटरमाइन कर सकते हैं कि जितने भी प्रोसेस वेरिफिकेशन है वो प्रेडिक्टेबल है या अनप्रेडिक्टेबल है। तो कि इस कंट्रोल चार्ट से हम क्या कर सकते हो, फाइंड आउट कर सकते हैं। इट इज़ अ प्लॉट ऑफ प्रोसेस कैरेक्टरिस्टिक्स यूजुअली थ्रू टाइम विद स्टैटिस्टिकली डिटरमाइंड लिमिट्स। यहाँ पे एक पर्टिकुलर प्लॉट है प्रोसेस कैरेक्टरिस्टिक्स का जिसके अंदर टाइम, ठीक है, और उसके विद स्टैटिस्टिकली डिटरमाइंड लिमिट्स, कितने लिमिट्स यहाँ पे हैं वो भी डिटरमाइन कर सकते हैं। When used for process monitoring, it helps the user to determine the appropriate type of action. जब भी ये पर्टिकुलर कंट्रोल चार्ट प्रोसेस मॉनिटरिंग के लिए यूज़ किया जाता है, ये कहाँ पे इस्तेमाल हो सकता है कि टू डिटरमाइन द अप्रोप्रिएट टाइप ऑफ एक्शन, किस टाइप ऑफ की एक्शन यहाँ पे लेनी है, टू टेक ऑन द प्रोसेस, जो प्रोसेस के ऊपर लेना है, डिपेंडिंग ऑन अ डिग्री ऑफ वेरिएशन इन द प्रोसेस। किसके ऊपर डिपेंड होती है, जो भी प्रोसेस के अंदर जो वेरिएशन होती है, चेंजेबल होता है, उसके ऊपर ये डिपेंड होता है। तो कंट्रोल चार्ट इज़ वेरी यूजफुल टू मेंटेन द क्वालिटी। नाउ नेक्स्ट, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट and common tool, histogram, now which is commonly used for frequency distribution graph. Okay, it is also used with numerical data but is uses frequency to plot the data. It represents the normality of data. Okay, so which is it include histogram के अंदर बार ग्राफ होता है जिसके अंदर फ्रीक्वेंसी, वैल्यूज़ की फ्रीक्वेंसी यहाँ पे दिखाई जाती है। ठीक है, तो इट इज़ क्रिएटेड बाय ग्रुपिंग द मेजरमेंट्स इनटू सेल्स, सेल्स के अंदर रहता है और बिन्स में रह सकता है। These are also useful to understand the location, spread and shape of the data. ठीक है, हिस्टोग्राम का इस्तेमाल लोकेशन को अंडरस्टैंड करने के लिए, स्प्रेड एंड शेप ऑफ द डाटा के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। नाउ फिफ्थ वन, परेटो चार्ट। इट इज़ अ बार ग्राफ दैट यूजेस द फ्रीक्वेंसी ऑफ कॉजेस और प्रॉब्लम्स। ये बार ग्राफ है जिसका यूज़
कॉजेज़ की फ्रीक्वेंसी या प्रॉब्लम्स की फ्रीक्वेंसी को जानने के लिए किया जाता है टू आइडेंटिफाई द मोस्ट सिग्निफिकेंट सिचुएशन फॉर द प्रोसेस। तो क्या करने के लिए, मोस्ट सिग्निफिकेंट सिचुएशन प्रोसेस में कौन सी आती है उसको डिटरमाइन करने के लिए परेटो चार्ट का इस्तेमाल किया जाता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, दिस परेटो चार्ट इज़ अ टूल टू फोकस अटेंशन ऑन प्रायोरिटीज़ वाइल ट्राइंग टू मेक डिसीजंस। जब भी आपको डिसीजंस लेने होते हैं तो परेटो चार्ट का इस्तेमाल वहाँ पे कर सकते हैं टू फोकस अटेंशन ऑन प्रायोरिटीज़। प्रायोरिटीज़ क्या है? इट इज़ अ गुड कम्युनिकेशन टूल दैट डिस्क्राइब्स द डाटा इन अ सिंपल एंड ईजी टू रीड बार डायग्राम। ये बहुत ही गुड कम्युनिकेशन टूल है जिसके अंदर डाटा को हम डिस्क्राइब कर सकते हैं सिंपल वे से, ईजी वे से, ठीक है। देन द चार्ट हेल्प्स टू स्टडी एंड एनालाइज द फ्रीक्वेंसी और अकोरेंसेस ऑफ एन इवेंट इन अ प्रोसेस। चार्ट का हेल्प्स हम एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी को स्टडी या एनालिसिस करने के लिए यूज़ कर सकते हैं कि कितनी मरतबा वो इवेंट पर्टिकुलर प्रोसेस में आया है और बिगेस्ट कंट्रीब्यूटर्स कौन है उसका यहाँ पे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। नाउ दिस इज वन परेटो चार्ट। नाउ नेक्स्ट इज scatter diagram, sixth tool. It is a type of graph that pairs the numerical data. यहाँ पे नंबर ऑफ दो पर्टिकुलर टाइप के डाटा हो सकते हैं कि उनको पेयर करने का काम स्कैटर डायग्राम में किया जा सकता है। दैट इज इट इज़ अ टाइप ऑफ अ ग्राफ दैट पेयर्स द न्यूमेरिकल डाटा टू डिटरमाइन द कोरिलेशन बिटवीन द डाटा पॉइंट्स। जितने भी पर्टिकुलर पॉइंट्स हैं या जितने भी ये कॉजेस है उनको इंटर रिलेटेड करने का काम स्कैटर डायग्राम का होता है। द स्कैटर डायग्राम इज आल्सो नोन एज द स्कैटर प्लॉट और कोरिलेशन ग्राफ। कोरिलेशन ग्राफ यहाँ पे आपके पॉसिबल कॉजेस को डिटरमाइन करने के लिए यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। इट हेल्प्स यूजुअलाइज द रिलेशनशिप बिटवीन द टू वेरिएबल्स। जितने भी वेरिएबल्स हैं दो वेरिएबल्स में का विजुअलाइज रिलेशनशिप यहाँ पे डिटरमाइन इस पर्टिकुलर स्कैटर डायग्राम से कर सकते हैं। Now last one is the stratification. This one is the technique to separate the data collected from variety of sources. Number of sources से जो भी हम डाटा कलेक्टेड करते हैं उस डाटा कलेक्शन को सेपरेट करने का काम स्ट्रैटिफिकेशन में किया जाता है। ओके और कैटेगराइज टू अंडरस्टैंड द पैटर्न ऑफ डाटा। किस टाइप का डाटा यहाँ पे है तो अलग अलग डाटा अलग अलग जगह पे क्या कह सकते हैं हम स्टॉक कर सकते हैं। सो द एक्ट ऑफ सॉर्टिंग डाटा पीपल एंड ऑब्जेक्ट्स इनटू डिस्टिंक्ट ग्रुप्स और लेयर्स। इसमें क्या किया जाता है, जितने भी डाटा है उसको सॉर्ट किया जाता है, पीपल का, ऑब्जेक्ट्स का, ठीक है, एंड उसको अलग अलग ग्रुप में बनाया जाता है या लेयर्स में बनाया जाता है। इट इज़ अ टेक्निक यूज्ड इन कॉम्बिनेशन विथ अदर डाटा एनालिसिस टूल्स। अदर जितने भी एनालिसिस टूल्स है उनके साथ मिलके ये कॉम्बिनेशन में काम करता है। व्हेन डाटा फ्रॉम अ वैरायटी ऑफ सोर्सेस और कैटेगरीज हैव बीन लम्प्ड टुगेदर। जब बहुत सारा डाटा वेरियस सोर्सेज से आता है और वो बहुत सी जगह पे इकट्ठा होता है तो उसको अलग करने का काम ये स्ट्रैटिफिकेशन करता है। द मीनिंग ऑफ द डाटा कैन बी डिफ़िकल्ट टू सी। तब क्या होता है, मीनिंग देखने के लिए बहुत सी डिफ़िकल्टी आती है तो उसको अलग करने के लिए ये स्ट्रैटिफिकेशन का यूटिलाइज हो सकता है। नाउ बाय यूजिंग दिस टेक्निक यूनिक सिम्बॉल्स फॉर ईच सोर्स यू कैन व्यू डाटा सेट्स इंडिपेंडेंटली। यहाँ पे हम अलग अलग यूनिक अगर सिम्बॉल दे दिए पर्टिकुलर सोर्स को तो वहाँ पे हम इंडिपेंडेंटली पर्टिकुलर डाटा को देख सकते हैं और इन कोरिलेशन टू द अदर डाटा सेट्स और उनका जितने भी 2 प्रकार या 3 प्रकार के डाटे उनको कोरिलेशन मेंटेन कर सकते हैं। तो ये थे सारे 7 क्वालिटी कंट्रोल टूल्स जो यूटिलाइज़ किया जाता है पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में। हर एक ऑर्गेनाइजेशन में जो क्वालिटी मेंटेन करनी होती है, ठीक है। आशा करता हूँ ये आपको सारी इन्फॉर्मेशन समझ में आई हो।